وقال آخر ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے، وقال آخر ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے، ارا میں دیکھتا ہوں رجالن کچھ لوگوں کو بے ادنا دین کے ادنا حصے پر، بے ادنا دین کے ادنا حصے پر قد قنو قناعت کیے ہوئے ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دین کے تھوڑے سے حصے پر وہ صبر کیے ہوئے ہیں، قناعت کیے ہوئے ہیں۔ ولا اراہم رضوا فی العیش بالدون، ولا اراہم میں جو لا ہے اس کا تعلق رضوا سے ہے، کس سے ہے؟ رضوا۔ اور ارا کا مطلب ارا، ولا اراہم اور میں انہیں دیکھتا ہوں کہ رضوا یعنی لا رضوا، وہ راضی نہیں ہے، بالعیش دنیا کی زندگی میں، بالدون تھوڑے پر، یعنی اخروی زندگی میں کے معاملے میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑے پر راضی ہیں، تھوڑی سی نماز پڑھ لی ہو گیا، لیکن دنیاوی معاملات میں تھوڑے پر راضی نہیں ہے، بہت زیادہ چاہیے اس کو۔ یہ مفہوم ہے اس شعر کا، دنیا کے تھوڑے سے حصے پر راضی ہیں اور آخرت کے تھوڑے سے حصے پر راضی ہیں اور دنیا کے تھوڑے سے حصے پر راضی نہیں ہے۔ یہ ہوا محسن۔ تو ولا اراہم رضوا فی العیش بالدون، ولا اراہم اور میں انہیں دیکھتا ہوں رضوا راضی نہیں ہے، فی العیش دنیا کی زندگی میں، بالدون تھوڑے پر۔ فاستغنی بالدین، فاستغنی تو تو بے نیاز ہو جا، بالدین دین کو لے کر، عن دنیا الملوک بادشاہوں کی دنیا سے، تو دین کو لے کر بادشاہوں کی دنیا سے بے نیاز ہو جا، دین کو لے کر بادشاہوں کی دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ کما استغنی الملوک دنیاہم عن الدین، جس طرح کے بادشاہ اپنی دنیا کو لے کر دین سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یعنی دنیا میں اس قدر مست ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے دین سے کوئی مطلب ہی نہیں، دین کو بالکل تو تم کیا کرو کہ بادشاہوں کی دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ اپنے دین کو لے کر، جس طرح وہ اپنی دنیا کو لے کر دین سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، یعنی اس کے برعکس اختیار کرو۔ وقال آخر اور ایک دوسرے شاعر نے کہا، عجب تو مجھے تعجب ہے، لمبتاع ضلالت بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے والے پر۔ مبتاع ابتاع مطلب خریدنا، اس میں فاعل مبتاع تعلیل ہو کر کے مبتاع خریدنے والا، ضلالت مطلب گمراہی، بالہدیٰ مطلب ہدایت کے بدلے، عوض کے لیے ہے بات، تو مانا ہوگا عجب تو مجھے تعجب ہے، لمبتاع ضلالت گمراہی خریدنے والے پر، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کے بدلے جو لوگ گمراہی خریدتے ہیں اس پر مجھے تعجب ہے، یعنی راہ راست پر آنے کے بجائے بھٹکتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اس پر تعجب ہے۔ ومن یشتری دنیا ہو بالدین اعجب، ومن اور جو شخص یشتری خریدتا ہے دنیا ہو اپنی دنیا، بالدین دین کے بدلے میں، اعجب وہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ جو دین کے بدلے میں دنیا خریدتا ہے وہ اور زیادہ تعجب خیز ہے۔ دو باتیں ہوں گی، ایک تو گمراہی کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے والا، یعنی ہدایت اور گمراہی کا معاملہ، اور دوسری طرف دین اور دنیا کا معاملہ، یعنی دین کو چھوڑ کر کے دین کے بدلے دنیا کو خریدتے ہیں۔ یہ دو شخص ہوئے جن میں سے ایک گمراہی کو اختیار کرتا ہے ہدایت کے بدلے، وہ تعجب خیز ہے، اور جو دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے وہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ اور سنیے ترجمہ دیکھیے، ومن یشتری اور جو خریدتا ہے دنیا ہو اپنی دنیا، بالدین دین کے بدلے میں، یعنی دین کے بدلے میں دنیا کو سودا کرتا ہے، اعجب وہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَيْنِ اور ان دونوں سے بھی زیادہ تعجب خیز ایک تیسرا ہے، اور وہ کون ہے؟ من، وہ شخص، وَمِنْ أَعْجَبُ مِنْ هَذَيْنِ اور ان دونوں سے زیادہ تعجب خیز من وہ شخص ہے، باع دینہ جس نے اپنا دین بیچ دیا، اپنا دین بیچ دیا، بے دنیا سوا ہو اپنے علاوہ کسی اور کی دنیا بنانے کے لیے، بے دنیا سوا ہو وہ زمین اپنی طرف، اپنے سوا کی دنیا بنانے کے لیے، اپنے علاوہ شخص کی
दुनिया बनाने के लिए। इसमें रियाद में दुनिया हो सेवा हैं? दुनिया हो सेवा हो अरे गलत है, उसको दुनिया हो को खत्म करो, गलत होगा, यही सही है। अपने दुनिया सेवा हो का मतलब बेदुनिया गैर ही। एक तो यह है कि अपनी दुनिया खरीद ली दीन के बदले में, तो कम से कम अपनी दुनिया तो बनाया। यहाँ ना अपनी दुनिया बना रहा है ना अपना दीन बना रहा है, किसी और की दुनिया बनाने के लिए अपना दीन बेच दिया। तो ये दोनों से ही ज़्यादा ताजुब है कि नहीं? उसी को कह रहे हैं आजबो मिन हाज़ैन, इन दोनों से ज़्यादा ताजुब है मन वो शख्स है बाआ दीनहु, जिसने अपने दीन को बेचा। बेदुनिया सेवा हो यानी बेदुनिया गैर ही, अपने अलावा की दुनिया बनाने के लिए, अपने अलावे की दुनिया के बदले में। फहुआ मिन ज़ैन आजबू, तो ये उन दोनों से ज़्यादा ताजुब है। तो तीसरा है उन दोनों से ज़्यादा ताजुब है। वक़ाला महमूद अल-वर्राक़, और महमूद वर्राक़ शायर ने कहा है तासी, तू नाफरमानी करता है, अल-इलाह, खुदा की, अल्लाह की। तासी इलाह, तू इलाह की नाफरमानी करता है। वह अंता तुज़हिरो हुब्बहु, हालांकि तू उससे मोहब्बत को जाहिर करता है, यानी दावा करता है। हालांकि तू उससे मोहब्बत का दावा करता है। इसका लफ्ज़ी मरना तो यही है कि तू उससे मोहब्बत का इजहार करता है, यानी बयान करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, हालांकि तू उसकी नाफरमानी करता है। हाज़ा मुहाल फिल क़ियास, ये तो क़ियास में अक्ल में मुहाल है, यानी अक्लन मुहाल है। बदियू, अनोखी बात है, नादिर है। बदियू मतलब अनोखा, नादिर। तो एक तरफ तो मोहब्बत का दावा करो, दूसरी तरफ नाफरमानी करो, तो ये तो अक्लन मुहाल और नादिर है। लव काना हुब्बो का सादिक़न, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती, लव काना हुब्बो का सादिक़न, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती, ला अताअतहु, तो तू जरूर उसकी इताअत करता है। ला अताअतहु, अताअतियों से मुतकल्लिम का सिगा क्या बनेगा? अताअता। ला अता मुतकल्लिम नहीं, मुखातब का, हाजिर का। ला अताअतहु, तो जरूर तू उसकी इताअत करता। क्यों? इन्नल मुहिब्बा, क्योंकि मोहब्बत करने वाला, लेमन, उस शख्स से, युहिब्बु, जिससे मोहब्बत करता है, मुतीउ, लेमन का मतलब उसके लिए जिससे मोहब्बत करता है, मुती होता है, फरमाबरदार होता है। इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका फरमाबरदार होता है। महबूब जो कुछ कहता है उसको सुनता है कि नहीं? और तू कैसा महबूब ये मुहिब खुदा है और मुहिब रसूल है कि रसूल और खुदा जो भी फरमाए उसे नाफरमानी करते हो। ये देखिए, इन्नल मुहिब्बा, बेशक मोहब्बत करने वाला, लेमन, असल इबारत होगी इन्नल मुहिब्बा मुतीउन, क्या इबारत होगी? इन्नल मुहिब्बा मुतीउन लेमन युहिब्बु, मोहब्बत करने वाला उसका मुती होता है, फरमाबरदार होता है जिससे मोहब्बत करता है। वक़ाला ऐज़न, और महमूद वर्राक़ ने नीज़ ये कहा है, या नाज़िरन, ए देखने वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, तो वहाँ तो आज कोई नहीं होगा ना, आज वो लोग भी नहीं आए हैं। तो कोई नहीं होगा आज, तो उनके यहाँ शादी थी इसलिए नहीं आया। वक़ाल ऐज़न, नीज़ कहा, या नाज़िरन यरनू बिअैनै, ये गलत लिखा है, राक़िदन नहीं राक़िदिन होगा। क्या होगा?
राकिदन बनाइए, है उसमें, ठीक है, चलिए राकिदन लिखा हुआ है। तो रना यरनू का मतलब होता है आंख से निशाना लगाना, यानी टकटकी बांध कर देखना है। और बेआइनैने था, क्या था? आइनैने, दो आंखें। और राकिदिन इसमें फाइल है मुजाफ इलैह, राकिद का मतलब सोने वाला, रकदा को तो क्या माना? सोना। सोना, इसमें फाइल क्या हो जाएगा? राकिद। तो बेआइनै राकिदिन, ये बेआइनैने राकिदिन था, इराफत की वजह से नून को गिरा दिया तो क्या बचा? बेआइनै राकिदिन। इसका माना क्या होगा? सोने वाले की दो आंखों से, सोने वाले की दो आंखों से। और यरनू टकटकी बांध कर देखना, नाज़िर देखना, देखने वाला, तो तर्जुमा ये होगा सोने वाले की दोनों आंखों से टकटकी बांध कर ए देखने वाले, सोने वाले की दोनों आंखों से टकटकी बांध कर ए देखने वाले। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि बहुत से सोने वाले ऐसे होते हैं कि सोने की हालत में उनकी दोनों आंखें खुली रहती हैं। तो वो आंखें खुली रहती हैं, लगता है तो बस देख रहा है, लेकिन हकीकत में वो सोया रहता, कुछ नहीं देख रहा होता है। और सुनिए, तो ऐसे आदमी की किताब यानी किया गया है कि जो जिसकी आंखें खुली हों, यानी ऐसे आदमी को जो देख रहा है लेकिन ऐसा देख रहा है गोया वो देख ही नहीं रहा। और सुनिए, वो मुशाहिदन लिल अम्रे गैरा मुशाहिदी, वो मुशाहिदन और ए मुशाहदा करने वाले, लिल अम्रे चीज़ का मुशाहदा, किसी चीज़ का मुशाहदा करने वाले, गैरा मुशाहिदीन जो मुशाहदा ना करने वाले की तरह है। तो तर्जुमा यूँ कर लीजिए कि मुशाहदा ना करने वाले की तरह ए मुशाहदा करने वाले, मुशाहदा ना करने वाले की तरह ए मुशाहदा करने वाले, यानी गोया के तू देख तो रहा है लेकिन चूंकि हकीकत तो नहीं देख रहा है। अब तुम्हारा देखना ऐसी है जैसे कि सोता हुआ आदमी आंखें खुली हो और देख रहा हो, हकीकत में वो देख नहीं रहा होता है, उसी तरह। तो ये सही तर्जुमा होगा, यूं ही तर्जुमा करें, या नाज़िरन यरनू बेआइनै राकिदिन, ए सोने वाले की दो आंखों से टकटकी बांध कर देखने वाले, और ए ना मुशाहदा करने वाले की तरह किसी चीज़ का मुशाहदा करने वाले। ये मुखातब हो गया पूरा। अब क्या कहना चाहते हैं उसमें, यहाँ तक खिताब हुआ। मन्नैता, मन्ना ये मन्नी बाबे तफील से, इसका माना क्या होगा? आरजूमंद बनाना, आरजू दिलाना। तमन्ना से बाबे तफील में ले जाइए तो आरजूमंद बनाना। मन्नैता, तूने आरजूमंद बनाया, नफ्स का, अपने नफ्स को या अपने आप को, ज़ल्लतन, गुमराही का, तूने अपने आप को गुमराही का आरजूमंद बनाया। वह अबतहा तुरकर रजाए, और तूने मुबाह कर दिया, तुरकर अबतहा, तूने उसके लिए यानी नफ्स के लिए मुबाह कर दिया, तुरकर रजाए, उम्मीद के रास्तों को, उम्मीद के लालच के रास्तों को तूने क्या किया? उसके लिए मुबाह कर दिया। उम्मीद के रास्तों ही तर्जुमा करें, तुरुक तरीक की जमा। वह हुन्ना गैरो कवासिदी, वह हुन्ना हालांकि वो रास्ते गैरो कवासिदी मुअतदिल नहीं है। कासिदतुन की जमा कवासिद, कासिदतुन के माने वो रास्ता जो मुअतदिल हो, दरमियाना हो, यानी सीधा हो। तो मतलब ये हुआ कि उम्मीद की राहों को नफ्स के लिए तूने मुबाह कर दिया। हालांकि उम्मीद की जितनी राहें हैं, है ना, उम्मीद की जितनी राहें हैं वो सब क्या है? मुअतदिल, यानी सीधी नहीं है, टेढ़ी राहें हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? इससे ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को गुमराही का आरजूमंद बनाया, यानी नफ्स जिसमें भटकता है उसी चीज़ की का मुतलाशी बनाया उसको, और ऐसे तरीके उसको दिखाए नफ्स को कि जो तरीके सीधे नहीं हैं, जो हलाकत की तरफ जाते हैं। तर्जुमा से देखिए, मन्नैता, तूने मुतमन्नी बनाया, क्या बनाया? मुतमन्नी बनाया, आरजूमंद बनाया, नफ्स का, अपने नफ्स को, ज़ल्लतन, गुमराही का, तूने अपने नफ्स को गुमराही का मुतमन्नी बनाया। वो अबतहा, और उसके लिए मुबाह कर दिया, तो रोकर रजाए, राहों को, उम्मीद की राहों को, वहुन्ना, हालांकि वो राहें, वाह हालिया है, हालांकि वो राहें गैरो कवासिदी,
मुतदिल दरमियाना नहीं, यानी सीधी नहीं है। और सुनिए तसिलु जुनुबा, अब और सुनिए उसका बयान कौन कौन सी आरजू है। तसिलु जुनुबा इला जुनुबे, वसला यसिलु का माना जोड़ना और पहुंचना होता है। तो तसिलु यहाँ जोड़ने के माने में है क्योंकि मफूल आया हुआ है, इसलिए पहुंचना लाजिम माना नहीं है। तसिलु जुनुबा, तू गुनाहों को जोड़ता है, इला जुनुबे, गुनाह की तरफ, यानी गुनाहों को गुनाहों के साथ जोड़ता है। इसका मतलब क्या है? गुनाह पर गुनाह करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, गुनाहों पर गुनाह करता है। वो तरतजी, और उम्मीद रखता है, रजा उनसे बाब इख्तियार में ले जाइए तो इर्तजा तरतजी उम्मीद रखता है। दरकल जनाने बिहा, गुनाहों के जरिए जन्नतों को हासिल करने का। दर का मतलब इदराक, हासिल करना, पाना। जनान जन्नत की जमा, और इन गुनाहों के जरिए तू जन्नतों के पाने का उम्मीदवार है, उम्मीद रखता है। वो फौजल आबिदी, और इबादत गुजार की कामयाबी का उम्मीदवार है। ये भी फौजल आबिदी दरकल जनान पर मातूफ है। तर्जुमा होगा तरतजी, तू उम्मीद रखता है। दरकल जनाने बिहा व फौजल आबिदी, गुनाहों के जरिए जन्नतों के पाने और एक इबादत गुजार की कामयाबी पाने। गुनाहों के जन्नतों और एक इबादत गुजार की कामयाबी पाने का तू पाने की तू उम्मीद रखता है, अर्जू रखता है। बात समझ में आई कि नहीं भाई? एक सूरत तो ये है कि ये फौजल आबिदी मातूफ हो किस पर? दर्क पर। एक सूरत ये है कि ये फौजल आबिदी नहीं बल्कि फौजिल आबिदी हो। क्या हो? आबिदी, फौजिल आबिदी, फिर मातूफ हो जाएगा जिनान पर, तो माना होगा दरकल जिनाने व दरका फौजिल आबिदी, जन्नतों के पाने और इबादत गुजार की कामयाबी के पाने, है ना। और अगर आप इस दर्क पर मातूफ करेंगे तो माना होगा जन्नतों के पाने और आबिद के, यानी इबादत गुजार की तरह कामयाब होना, इबादत गुजार का कामयाब होना। तू कामयाब होने की उम्मीद रखता है, यानी एक इबादत गुजार जिस तरह कामयाब होता है या कामयाबी मिलती है उसको उस तरह की उम्मीद रखता है गुनाहों के जरिए। कैसे मुमकिन है? समझ में आया कि नहीं? चलिए, गुनाहों को गुनाह करता है जन्नत हासिल करने की और इबादत गुजार की कामयाबी हासिल करने की उम्मीद रखता है, ये मुमकिन नहीं। और आगे बढ़िए। वनसीता, और तू भूल गया अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला ने अखरजा आदम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया था मिनहा जन्नत से इला दुनिया की तरफ बेज़म्बिल वाहिद, एक मामूली लफ्ज़ से। तो इस बात को भूल गया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया की तरफ निकाल दिया था सिर्फ एक लफ्ज़ की बिना पर। और तू गुनाहों पर गुनाह किए जा रहा है, उसके बावजूद जन्नत की कुछ यानी हासिल करने की उम्मीद रखता है। ताज्जुब है कि नहीं इसका? तो ये है। वकाल आकर, एक दूसरे शायर ने कहा है, बेकदरिल कद्दे, कद्दुन के माने कद्दो काविश, मेहनत, मशक्कत। बेकदरिल कद्दे, मेहनत के बकद्र, मेहनत की मिक़दार से तुक्तसबो, कमाई जाती है, हासिल की जाती है, अल-मआली, बुलंदियाँ। मेहनत के एतबार से या मेहनत की मिक़दार से बुलंदियाँ हासिल की जाती हैं, अज़मतें हासिल की जाती हैं। वमन तलबल उला, और जिसने उला तलब किया यानी बुलंदी तलब की, सहरल लयाली, वो रातों रात जागा। ये एक फितरी बात है, तो इसका तर्जुमा आप हाल से भी कर सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं जो बुलंदी तलब करता है वो रातों रात जाग रहा है, जो बुलंदी तलब करता है रातों रात जागता है। यगूसुल बहरा मन तलबल लाली, गासा यगूसु के माने होते हैं गोता लगाना। यगूसु अलबहरा, समंदर में गोता लगाता है, फाइल कौन है? मन। यगूसुल बहरा, समंदर में गोता लगाता है। मन, वो शख्स, तलबा, जिसने तलब किया, अल्लाह आली, लुलू को। लुलू का माना मोती, उसकी जमा आली। तो जो मोतियों को तलब करता है वो समुद्र में गोता लगाता है। हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, तो छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं इधर, वो गंगा के ऊपर जब ट्रेन गुजरती है तो किनारे किनारे सब क्या है, गोता लगा लगा करके सिक्के ढूंढते हैं। ये सब करते हैं ना भाई। यहाँ इसी तरह जो समुद्र में, क्योंकि मोती तो समुद्र ही से नहीं निकलते हैं, सीप निकालते हैं, सीप को तोड़ते हैं, फिर वहाँ से मोती निकालते हैं।
तो समंदर में गोता लगाता है जो मोतियों का तलबगार है, मोती तलब करता है। वो यहज़ा बिसियादत व नवाली, हज़ या यहज़ा इसके माना क्या है? हासिल करना। हज़ या यहज़ा का क्या माना? हासिल करना, कामयाब होना। वो यहज़ा, ये यहज़ी लिख दिया है, ये सही नहीं है। वो यहज़ा और हासिल कर लेता है बिसियादत सरदारी व नवाली और नेमत, बख्शिश, सरदारी और बख्शिश तलब कर लेता है या नेमत हासिल कर लेता है। कौन कर लेता है? वही जो समुद्र में गोता लगाता है। वमन तलबल उला मिन गैरे कद्दिन, वमन और जिस शख्स ने तलब की अल उला बुलंदी को, अजमत को, मिन गैरे कद्दिन बगैर मेहनत और काविश के, बगैर मेहनत के जिसने बुलंदी तलब की या अजमत तलब की, अज़ा उसने बर्बाद कर दी अल उम्रा उम्र को, फी तलबिल मुहाली मुहाल को तलब करने में। जिसने बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के बुलंदी हासिल करना चाहा तो उसने अपनी उम्र को बर्बाद कर दिया मुहाल तलब करने में। यानी बगैर कोशिश की कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती, मुहाल वाज़ेह है। वक़ाल आखर, एक दूसरे शायर ने कहा है, इन्नी बेशक मैंने राय तो देखा है, वफिल अय्याम में तजरबतुन और ज़मानों में तो तजर्बा है, ज़मानों में तजर्बा है। यानी ज़माने के गुजरने के साथ साथ इंसान का तजर्बा होता है, बढ़ता है, तो ज़माने ही में तजर्बा होता है। ये तर्जुमा कर ले आप, जुमला है। देखिए, इन्नी राय तो बेशक मैंने देखा है, वफिल अय्याम में तजर्बतुन इस हाल में कि ज़माने ही में तजर्बा होता है। क्या देखा है? वो इधर है, लिस सब्रे के सब्र का आक़िबतन महमूदतल असर, सब्र का अंजाम महमूदतल असर, अच्छा असर वाला है, उम्दा असर वाला है, अच्छा असर वाला है। ठीक है। लिस सब्रे यानी आक़िबतन लिस सब्रे, सब्र का अंजाम, महमूदतल असर अच्छा असर वाला है, काबिल तारीफ असर वाला है। वक़ल्ला मन जद्दा फी अमरिन युहाविलुहु फस्तसहब सब्रा इल्ला फाज़ा बिज़ुफ़ान। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, तब तर्जुमा समझ में आएगा। ये कल्ला कभी कभी अदेमा के माने में इस्तेमाल होता है, जैसे कलीलुल हया, क्या तर्जुमा होगा? बेहया। कलीलुल हया का क्या तर्जुमा होगा? बेहया। यहाँ कलील किसके माने में है? सिरे से नफी के माने में, अदम के माने में। इसी तरह यहाँ पे कल्ला जो लफ्ज़ आया हुआ है, ये नफी के माने में आया हुआ है, कम होना यानी नहीं होना। तो कल्ला नफी के लिए हो गया ना। आगे एक लफ्ज़ आ रहा है इल्ला, वो भी नफी के लिए होता है ना, नफी मिलकर इस बात में हो जाता है, इल्ला का माना भी नफी। कल्ला और इल्ला इन दोनों को हम लोग हज़फ कर देते हैं, उसके बाद तर्जुमा करते हैं। देखिए तो क्या होगा? मन जद्दा फी अमरिन, जिसने कोशिश की, फी अमरिन ऐसी चीज़ में, युहाविलुहु जिसका वो इरादा रखता है, जिसने ऐसे काम में या ऐसी बात में कोशिश की जिसका वो इरादा रखता है, कष्ट करता है, हवाला युहाविलु कष्ट करना। फस्तसहब सब्रा, फिर उसने सब्र को साथी बनाया, यानी सब्र इख्तियार किया, कोशिश भी की, जिसका इरादा रखता है उसको हासिल करने की कोशिश की और सब्र को भी साथी बनाए रखा, यानी सब्र भी किए रहा। तो क्या होगा? फाज़ा बिज़ुफ़री, तो वो कामयाबी को हासिल कर लेता है, उसने कामयाबी हासिल कर ली। समझ में आ गया ना तर्जुमा है? कल्ला और इल्ला दोनों को हटा दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा? मन जद्दा फी अमरिन युहाविलुहु, जिस मन जद्दा जिसने कोशिश की, फी अमरिन युहाविलुहु ऐसे काम में या ऐसी चीज़ में जिसका वो इरादा रखता था, फस्तसहब सब्रा, फिर उसने सब्र को साथी बनाया या सब्र के साथ रहा, फाज़ा बिज़ुफ़री, वो कामयाबी हासिल कर लेता है। समझ में आ गया? ऐसे ही अभी कल्ला इल्ला के चक्कर में रहूँगा तो समझ में नहीं आएगा। क्या जानिए कि कल्ला किसके माने में है? आदेमा के माने, नफी के माने। वक़ाल काब बिन ज़ुहैर अल-मुज़नी, और काब बिन ज़ुहैर मुज़नी ने कहा है, लैसा लिमन लम यरकबिल हौला बुग़यतुन वलैसा लिरहमिन हत्तहुल्लाहु हामिलु। लैसा नहीं है, लिमन उस शख्स के लिए, लम यरकब जो सवार नहीं हुआ, अल हौला खौफ पर, बुग़यतुन कोई मकसद। तर्जुमा समझ में आया?
मफ़हूम भी वाज़ेह हुआ। फाइल बुग़यतुन खौफ पर जो सवार नहीं हुआ, यानी जिसने खतरे को मोल नहीं लिया, उसका कोई मकसद नहीं है। देखिए लैसा ये पहले नाकिस है और इसका इसम कौन है? बुग़यतुन जो आगे आ रहा है। लैसा बुग़यतुन यानी लैसा मकसद, कोई मकसद नहीं है। किसके लिए कोई मकसद नहीं? लिमन लम यरकब बिल हौल, जो खौफ पर सवार नहीं हुआ, जिसने खतरनाक काम नहीं किया। जो खौफ पर सवार नहीं हुआ उसका कोई मकसद नहीं। वलैसा और नहीं है लिरहलिन उस कजावे के लिए हत्तहुल्लाह जिसको अल्लाह ने गिरा दिया, हामिल कोई उठाने वाला। तो यहाँ तर्जुमा क्या होगा? लैसा हामिलुन कोई उठाने वाला नहीं है, लिरहलिन उस कजावे को हत्तहुल्लाह जिसको अल्लाह ने गिरा दिया। यानी अल्लाह ताला जिसको गिरा दे उसको कोई उठाने वाला नहीं। ये कहनाया है, इसकी बात ये है कि अल्लाह जिसे कोई इज्जत कर दे, जिसको गिरा दे उसको इज्जत देने वाला कोई नहीं है। समझ आ गया? रहनुम का कजावा समझते हैं? ऊँट के ऊपर जो पालान मानते हैं, जिस पर बैठते हैं उसी को कजावा बोलते हैं। इज़ा अंता लम तुरिस अनिल जहले वल खना, इज़ा जब अंता तू लम तुरिस परहेज नहीं करेगा अनिल जहले जहालत से, वल खना और बदगोई से, जहालत और बदगोई से, बुराई बकने से, जब तू परहेज नहीं करेगा, मुंह नहीं मोड़ेगा, असबता तो तू पहुंचाएगा हलीमन किसी गुर्दगार को मुसीबत। असबता हलीमन किसी गुर्दगार को तू मुसीबत पहुंचाएगा। आओ या असाबका तुझे पहुंचाएगा, जाहिलुन कोई जाहिल मुसीबत तुझे पहुंचा देगा। या तो तू किसी को मुसीबत पहुंचा देगा या कोई जाहिल तुझे मुसीबत पहुंचा देगा। ये कब होगा? जब जहालत और बदगोई से परहेज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने बदगोई कर दी तो उधर से उसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब पत्थर से मिलेगा, तो आपको मुसीबत पहुंच जाएगी, है कि नहीं? और अगर आपने ही ज़्यादा ज़बरदस्त फेंक दिया पत्थर तो आप भी दूसरे को तकलीफ पहुंचा देंगे। इसलिए बदगोई, ज़्यादा बदगोई और ज़्यादा जहालत से क्या होना चाहिए? परहेज किया जाना चाहिए।